Yes. Chalo. Good evening, all of you. Sorry for late. Uh, Let us start with the next topic in this chapter. That is, we have started already the structure of atom and nuclei. Okay. तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमको इसके आगे का जो पार्ट है दैट इज अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अभी आज हमको देखना है, जिसमें हम देखेंगे आज कि किस तरह से जो बोर्स फॉर्मूला कल जो हमने डिराइव किया था, जो कि 1/लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू, here it is 1/n square minus 1/m square. So what is the significance of this formula? We have to see now. See here, if we just draw the energy level diagram in which, अभी ये एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब क्या है, देखो ठीक से कि जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, this here is the third orbit, fourth orbit, and so on like this. Okay, so these are the different orbits of hydrogen atom. Okay, so there are अभी हाइड्रोजन के अंदर हमको पता है ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन में है या कौन से ऑर्बिट में है वो मैटर करता है. सपोज दिस इलेक्ट्रॉन जस्ट जंप्स, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, ये न्यूक्लियस है. अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर जंप करता है किसी भी दूसरे ऑर्बिट से, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिख रहा है ठीक से, ये सेकेंड ऑर्बिट है, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ वन एंड सिक्स वन एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू infinity. Okay, so if suppose electron jumps from the second orbit to first orbit, okay, or third orbit to first orbit, or this fourth orbit to first orbit, fifth orbit to first orbit, or sixth orbit to first orbit, means in short, whenever the electron jumps from any of the higher orbits to the first orbit specially, then it emits the waves of wavelength which form a group in the spectrum that is actually called as the Lyman series. ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है उस स्पेक्ट्रम के अंदर द ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड, ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स which is obtained by the transition of electron from any of the higher orbit to the first orbit is actually called as Lyman series. Okay, इसको हम बोलेंगे Lyman series. Remember, अभी यही डायग्राम जो है वो हम यहाँ पे एनर्जी लेवल के हिसाब से दिखा सकते हैं. देखो, this is suppose the first energy level, okay, of hydrogen atom, then here it is the second energy level of hydrogen atom, then it is the third one, then again it is the fourth one. एक बात नोट करो यहाँ पे ठीक से कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये देख रहे हो ठीक से, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एन स्क्वायर, इनवर्स एन स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो आगे चल के ये डिफरेंस और ही कम होगा जरूर. इस तरह से ये सपोज फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू इंफिनिटी, नो डाउट. इवन यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं आगे भी. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेवेंथ वन, एट्थ वन विल बी वेरी ऑल्सो क्लोज टू इट, ninth one will be still closer in this way, and afterwards we can just get the cloud in this way, which will get very very dense, so that it will be very difficult to distinguish one of the orbits from another, because the difference will go on decreasing. ये समझ सकते हो ठीक से, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या है कि डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे कम कम होता जाएगा, एंड विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट क्लियरली, एंड दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट consider it as only one. Okay, now see, if suppose this electron jumps from second orbit to first orbit, then we can get the first line, which is called as the first line of Lyman series. Okay, so this transition corresponds to a wavelength in this spectrum, and that wavelength can be obtained by putting n equal to 1 and m equal to 2 in this formula here. Getting it? क्योंकि यहाँ पे देखो कौन से ऑर्बिट से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट से, और वो भी फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है. करेक्ट है?
Yes, okay. So this transition corresponds to the first line of Lyman series. We can say the second transition, that is from 3 to 1. मतलब when the electron jumps from the third orbit to first orbit, then it emits the wavelength or emits the waves whose wavelength is nothing but the second line of this Lyman series, and its wavelength can be found out by putting n equal to 1 again and m equal to 3 here. करेक्ट है? n इक्वल टू 1 डालना है और m के बदले 3 डालना है. इससे हमको इस वेवलेंथ का ये जो लैम्बडा हमको मिलता है, that lambda will be actually the wavelength of that color or wavelength of that line which is emitted when the electron jumps from third orbit to first orbit here. It is called as the second line in the Lyman series. Remember, at the same time, we can see if the electron jumps from this fourth orbit to the first orbit, then it emits the third line of Lyman series whose wavelength can be obtained by putting m equal to 4 and n equal to 1 here. देखो 4 1 करेक्ट है. So every transition will correspond to a wavelength in this here. And even यहाँ से आगे फिफ्थ ऑर्बिट से भी जब वो जंप करता है या सिक्स्थ ऑर्बिट से जंप करता है या सेवंथ ऑर्बिट से जंप करता है, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर जंप करता है तो उसको हम बोलते हैं Lyman series. Remember, Lyman series it's called. Okay, what is Lyman series then? The series of wavelengths obtained when the electron jumps from any of the higher orbit to the first orbit. Okay. Second, now if suppose electron jumps from any of the higher orbit to second orbit specially, so second orbit पे इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर सकता है? एक तो थर्ड से कर सकता है, देखो, या तो फोर्थ से, या तो फिफ्थ से, या तो सिक्स्थ से, या तो सेवंथ से, एंड सो ऑन लाइक दैट, राइट? So the group of wavelengths obtained when this electron jumps from any of the higher orbit to the second orbit precisely forms another group which will be called actually the Balmer series. Okay, ये जो group है उसको हम बोलेंगे Balmer series. Okay, and what is the Balmer series? It is a group of wavelengths obtained when the electron jumps from any of the higher orbit to the second orbit specially. So we can just show it in this diagram here. तो यह थर्ड से सेकंड पे जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा, so उसको हम क्या बोलेंगे? It is going to be the first line of this Balmer series. ये देखो, ये फर्स्ट लाइन करेक्ट है. So इसका वेवलेंथ कैसे हमको मिलने वाला है? By putting m equal to 3 and n equal to 2 in this formula here. Okay, and the second line of Balmer series can be obtained by just putting this m equal to 4 and n equal to 2 here in this formula. Similarly, the third wavelength, yeah, fourth one and fifth, so on like that. So all these different wavelengths can be found out by using the corresponding transition. Okay, n m का वैल्यू क्या होगा? जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और n का वैल्यू मतलब क्या होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है. तो जहां तक हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, देखो, इफ वी टॉक अबाउट द बाल्मर सीरीज, then all these wavelengths can be obtained for all these lines in the Balmer series. The value of n is compulsorily 2. करेक्ट है? n का वैल्यू जो है वो कंपल्सरी 2 होगा, फिक्स्ड है बाल्मर सीरीज के लिए. और Lyman सीरीज के लिए n का वैल्यू क्या होगा? 1, नो डाउट. बट m कैन वेरी. m can be either 2, 3, 4, 5, 6 or greater than 1, anyways, anything like that. और बाल्मर सीरीज के लिए n तो चलो फिक्स्ड है 2, but m is not fixed. It's going to be variable. M is going to be either 3 or 4, 5, 6, 7 or 8 and 9, 10 like that up to infinity in this way. Similarly, the third series, you can see if the electron jumps from any of the higher orbit to the third orbit here. अभी थर्ड ऑर्बिट पे जंप करने के लिए वो या तो फोर्थ से कर सकता है, या तो फिफ्थ से कर सकता है, या तो सिक्स्थ से कर सकता है, या तो सेवंथ से, या तो so on like that up to infinity. So we can just show that transition here. And when this electron jumps from this orbit to this orbit here, then wavelength of waves which is emitted here forms a group in the spectrum. If we pass this light through the prism, then we can just get a group of waves or group of lines here in this spectrum, which forms which is called as a Paschen series. Remember, what do you mean by this Paschen series? Yes, what is Paschen series? It is the group of waves
which are obtained when the electron jumps from any of the higher orbit to the third orbit specially. Okay, so we can just show its diagram in the diagram here like this. So this is the first line of Paschen series. Okay, Paschen series का जो first line है उसका वेवलेंथ कैसे मिलेगा हमको, इस फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ पे n और m क्या डालना पड़ेगा पता है ठीक से, n के लिए 3 डालना है और m के लिए 4 डालना है, बस खत्म। So we get the first line of Paschen series, no doubt. Then again, second line can be obtained by just putting n equal to 3 and m equal to 5. In the same way here, if you put m equal to 6 and n equal to 3, we can get the third line of Paschen series and so on like that up to infinity in this way. Okay, so all these different lines can be obtained by putting n fixed, that is 3, and m can be put as 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and so on like that, so as to get the different lines of Paschen series. Okay, in the next way we can say the bracket series. Okay, bracket series का जो first line है तो ये हो गया first line. It corresponds to the transition of electron from m equal to 5 to n equal to 4. The second line of bracket series corresponds to the transition of electron from 6 to 4 like this, 7 to 4, 8 to 4, then 9 to 4 and so on up to like this will be called as the bracket series. Okay, इसको हम बोलेंगे bracket series. And finally Fermi series. दिख रहा है इन सबको? तो देखो ये 5th ऑर्बिट पे वो गिरेगा, लेकिन उसके लिए उसको पहले 6th ऑर्बिट पे रहना पड़ेगा जरूर। तो 6th ऑर्बिट से या 7th ऑर्बिट से या एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट पे अगर जंप करता है तो उसको हम बोलते हैं फर्न सीरीज। ओके, फर्न सीरीज। एंड दिस ट्रांजिशन और उसका जो वेवलेंथ है वो निकालने के लिए हमको जरूर यहाँ पे n और m के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो डालने पड़ेंगे जरूर। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी भी ग्रुप किसी भी ट्रांजिशन को अगर करस्पॉन्ड करता है तो उससे वो जो वेव्स इमिट करेगा वो वेवलेंथ यहाँ पे स्पेक्ट्रम में किधर तो भी लाई करेगा, कोई ना कोई रीजन में वो फॉर्म करेगा उसका अपना कलर, एंड दैट कलर विल फॉर्म इन द ग्रुप एंड दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड एज either Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series or Fermi series in this way. So this is actually all about the hydrogen level diagram. Okay, energy level diagram बोलते हैं इसको. This is the surface of nucleus which has the lowest ground state. It is called as ground state, or we can say lowest energy state, from which we have to compare the energy about. तो यहाँ से हम एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में अंदर अलग अलग एनर्जीज होता है। जैसे कि हमने कल भी देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है हमको पता है ऑलरेडी, इट इज गोइंग टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में वो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द सेम वे इन द थर्ड ऑर्बिट इट इज अबाउट -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन अप टू like that into the next orbits like this. So accordingly we can get this all the energies in different orbits and just have this hydrogen level spectrum in this way here explained here. तो in this way we can explain the hydrogen spectrum. ठीक है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर एक कलर का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द प्रॉपर वैल्यू ऑफ n एंड m। इसमें एक बात समझना है हमको कि ये सब जो लाइमन सीरीज जो है, दिस लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड एक्चुअली इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है ना, ये जो वेव्स हैं वो दिखते नहीं है, दे आर इनटू द अल्ट्रावायलेट रीजन। सो यूवी रेज है वो, याद रखो ठीक से, दे आर नॉट विजिबल टू द आईज। बट बाल्मर सीरीज के अंदर जो हमको कलर्स मिलते हैं दे आर विजिबल लाइट। सो दैट्स व्हाई these are the visible colors we can get here, and that's why बाल्मर सीरीज के जो अलग अलग लाइंस है सो इनको हम बोलते हैं H अल्फा लाइन, इसको हम बोलेंगे H बीटा, इसको बोलते हैं H गैमा। इस तरह से ये अल्फा बीटा गैमा ये जो नंबर्स है ये किसको हम देते हैं, बाल्मर सीरीज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइंस को हम नंबरिंग देते हैं। बाकी सबको H अल्फा H बीटा वगैरह नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट होने की वजह से नहीं दिखते हैं, और ये जो है इसके आगे के वो इंफ्रारेड होने की वजह से नहीं दिखते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आता है, विजिबल, और विजिबल के बाद क्या आता है,
अब देखो विजिबल मतलब क्या हो गया, वो विबग्योर हो गया कि नहीं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अभी वायलेट से पहले के जो वेव्स है वो अल्ट्रावायलेट कहलाते हैं, बट रेड के बाद के जो वेव्स है उनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। ओके, इसमें से भी ये जो पाशन सीरीज के अंदर जो आते हैं वो वेवलेंथ एक्चुअली नियर इंफ्रारेड बोलते हैं उसको, नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड रीजन में रेड के पास में, रेड के जस्ट अब इमीडिएट बाद आने वाले जो रेज है उनको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड। क्योंकि देखो इंफ्रारेड जो रीजन है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है ना, काफी ब्रॉड है, इसलिए इंफ्रारेड रीजन को ही हम तीन अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ आउट ऑफ दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज नियर इंफ्रारेड रीजन। इन द सेकेंड पार्ट हियर विल बी कॉल्ड एज द मिड इंफ्रारेड। मिड आईआर मतलब क्या, ये जो है रेड से थोड़ा बहुत दूर रहता है वो, और जो फ्रंट सीरीज है इट इज ऑब्टेन्ड इज इन एक्चुअली फार इंफ्रारेड, फार आईआर उसको बोल सकते हैं। फार मतलब very far away from the red color. So in this way all these three wavelengths are also not visible because they lie in the infrared region, and this also is not visible because it lies in the ultraviolet region. Only these lines in the Balmer series are visible to our eyes. Okay, हमारी आंखों के लिए सिर्फ बार्मर सीरीज के अंदर के जो वेव्स है या लाइट कलर्स है वही हमको विजिबल होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज में होते हैं और ये इंफ्रारेड रीजन में होते हैं, इसलिए दिखते नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर इनविजिबल, रिमेंबर। बट दिस होल थिंग डिस्क्राइब्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हियर। ये पूरा जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछो, जस्ट अनमाइक करके अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो या तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो फटाफट। यस, नो डाउट। चलो ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। That is about the de Broglie's hypothesis. Okay, de Broglie's hypothesis. You already seen this in the dual nature of light, I think so. Yes. What is de Broglie's hypothesis? See here, अभी लाइट के बारे में ये कहा जाता है कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर because in some experiments like interference or diffraction light behaves like a wave. लाइट का जो वेव कैरेक्टर है तो वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि लाइट को वेव मान के ही हम उसका फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं और पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, और पार्ट डिफरेंस के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके वहां पे हमको कभी कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मिलता है। सो इंटरफेरेंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, ऑल टाइप ऑफ वेव्स, एंड लाइट इज फाउंड टू सेटिस्फाई द इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो लाइट जो है वो इंटरफेरेंस का जो पूरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो सेटिस्फाई करता है, जिससे पता चलता है कि लाइट इज अ वेव। ओके, बट इन अदर एक्सपेरिमेंट्स लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अंदर हम देखते हैं कि लाइट का वेव थ्योरी वहां पे काम नहीं करता। इफ यू assume the light to be a wave, then we can never prove or never satisfy the observations of photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं अगर जब तक हम लाइट को एक वेव मानते हैं। बट वील हाउ टू इमेजिन द लाइट एज अ फोटोन, दैट इज पार्टिकल। ओके, तो लाइट को हमको पार्टिकल एज्यूम करना पड़ता है अगर हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है तो। ओके, so that's why the light is supposed to consider or supposed to have a dual nature in the sense
It can be considered as a particle whenever required, or it can also be considered as wave whenever required. That means according to the Max Planck quantum theory, so का जो quantum theory है उसके द्वारा accordingly हम ये जानते हैं कि if there is a source and it is emitting the electromagnetic waves, so the electromagnetic waves are not emitted in continuously by the source, but they are emitted in the form of some packets like this. So इस तरह से पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट होता है, ये मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी बोलता है. और वो ये भी कहता है कि एनर्जी ऑफ ईच ऑफ दिस पैकेट्स is given by the formula h nu, where nu stands for the frequency of that light or electromagnetic wave. तो इस तरह से मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि एनर्जी इज ऑलवेज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड वन सच पैकेट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द क्वांटा. रिमेंबर, या फोटोन भी बोलते हैं उसको. लाइट के बारे में अगर बात करते हैं तो फोटोन बोलते हैं, और अगर इन जनरल कोई भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उसको क्वांटा बोल सकते हैं. सो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा is actually going to be this h into nu here in this way. And de Broglie's hypothesis tells us simply that not only light but all type of waves in the nature have a dual property or dual characteristics. That means every wave can be considered to be equivalent to a particle, just like light. जैसे लाइट के बारे में हमने बोला कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. दैट मींस लाइट कैन बी कंसीडर्ड एज पार्टिकल आल्सो एंड इट कैन बी कंसीडर्ड एज वेव आल्सो. इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव्स. So in the same way here, the de Broglie's hypothesis tells us simply that not only the light but all type of waves in the nature can be considered as particles whenever required, and they can also be considered as waves whenever required. That means if suppose there is a wave which is moving in this direction here, whose wavelength is lambda, this wave can be considered to be equivalent to a particle whose momentum will be p. And if we can have really a particle, अगर हमारे पास कोई particle है जिसका momentum p है, so this particle of momentum p can be considered to be equivalent to a wave of wavelength lambda. And this wavelength of the wave and momentum of the particle is related to each other by this equation, that is lambda is equal to h by p, or p is equal to h by lambda. Remember, so see here if we अभी अगर सपोज यहाँ पे देखो ठीक से, ये हो गया p is equal to h by lambda, और lambda is actually going to be h by p. That means if suppose this wave is moving in this in fixed direction and its wavelength is lambda, okay, then this wave can be considered to be equivalent to a particle which is moving in some direction whose momentum is p, and that p is given by this formula. So p निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेव का जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे डाल देंगे. So h by lambda will become the momentum of that particle which is associated with this wave here. And if suppose we have a particle which has a momentum p here and it is moving in this right direction, then this moving particle can be considered to be equivalent to a wave. So ये particle का जो nature है ये इस wave के साथ बराबर होगा, equivalent होगा. So this particle can be considered to be equivalent to a wave whose wavelength lambda is given by the formula h by p. तो इसका मतलब हम particle का wavelength निकाल सकते हैं और wave का momentum निकाल सकते हैं. देखो ठीक से, आई विल रिपीट अगेन. एक्चुअली वेवलेंथ किसको होता है, वेव को होता है, और मोमेंटम किसको हुआ करता है, पार्टिकल को, है कि नहीं. क्योंकि मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. अगर वो पार्टिकल को कुछ मास होगा और वो कुछ किसी ना किसी स्पीड से मूव हो रहा होगा तभी तो उसको मोमेंटम होगा कि नहीं. अगर उस पार्टिकल का मास ही कुछ नहीं है, वो अगर वेव है तो वेव को मोमेंटम तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना. और किसी पार्टिकल को वेवलेंथ हो नहीं सकता है क्योंकि पार्टिकल तो पार्टिकल है, तो उसको मोमेंटम हो सकता है लेकिन वेवलेंथ कभी नहीं हो सकता है. लेकिन यहाँ पे डी ब्रूगलीज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट एवरी वेव इज इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल, एंड द मोमेंटम ऑफ दैट वेव means momentum of that particle which is associated with this wave can be found out by using this formula p is equal to h by lambda, and the wavelength of the wave which is associated with this particle can be supposed to be equal to lambda is equal to h by p. Remember,
सो मोमेंटम ये जस्ट शफल किया हुआ है, देखो या लैम्बडा इधर लेके आएंगे तो पी नीचे चला जाएगा, और अगर पी को इस तरफ लेके आएंगे तो लैम्बडा नीचे चला जाएगा अकॉर्डिंगली। सो ये दो इक्वेशंस जो है वो एक ही इक्वेशन के दो अलग अलग फॉर्म्स है, याद रखो रीअरेंजमेंट है सिर्फ, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है दिस इज कॉल्ड एज द डी ब्रूगलिस हाइपोथेसिस। नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस डी ब्रूगलिस हाइपोथेसिस ऑन इलेक्ट्रॉन, okay, and obviously this de Broglie's hypothesis can be proved by combining Einstein's mass energy equation and the Max Planck's quantum theory। देखो Planck's quantum theory क्या कहता है, E is equal to h nu, करेक्ट है। दूसरी तरफ Einstein's mass energy relationship क्या कहता है, E is equal to mc square, करेक्ट है। अभी अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको मिलता है h nu is equal to m c square, but already we know that nu मतलब frequency is going to be actually c by lambda, wavelength upon speed upon wavelength, right? So if we just replace it here, then we can get this as h into c by lambda, which is going to be equal to mc square simply, so that from both sides c just gets cancelled, okay, and what we are left with is h by lambda is equal to m into c, where m is the mass, c is the velocity. Mass into velocity becomes momentum, and that's why we can say that this h by lambda is actually going to be p, where p stands for momentum. So momentum is equal to h by lambda, or lambda is equal to h by p stands in this way, so it can be proved in this way. But now the important thing here is that we have to apply this de Broglie's hypothesis on revolving electron around the nucleus, okay. So let us try to do that. Yes, so on the basis of this de Broglie's hypothesis, we will understand the explanation of the second postulate, okay, second postulate. So how can we explain the Bohr's second postulate? जो मैंने बताया था कि angular momentum of the revolving electron happens to be n times of h by 2 pi. This is the Bohr's second postulate, which we have to explain on the basis of de Broglie's hypothesis. That is what we have just seen. So now in order to prove this, we'll just understand one thing, that revolving electron अभी 10th standard में, मतलब 10th standard तक आपको यही बताया गया था कि न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंपल पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल जो है वो इस तरह से घूमता रहता है, जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, or any planet any sun suppose moon revolves around the earth, right? So in the same way the electron will be revolving around the nucleus in this circular orbit in this way here, but afterwards can you imagine this electron according to the de Broglie's hypothesis, can you imagine this electron to be just like a wave which is revolving around this nucleus? अगर वैसा हम करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो इस तरह से कुछ डायग्राम हमारा बनेगा। ये हो गया ऑर्बिट, ओके, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो इस तरह से है, और अब यहाँ पे वेव हमको फॉर्म कराना है, तो ये वेव जो है वो इस तरह से बनेगा। ये देखो, ये क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ एंड लाइक दिस। सो बट अब ये देखो, इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि देखो ठीक से, अभी अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये क्रस्ट ट्रफ करते करते अगर ऐसे आ गया, और अगर ऐसे अगर बना दिया, so this will not exist actually, just because this wave will just try to cancel itself, because afterwards what will happen is this crust will incident on the trough, and again this trough will get incident on the crust, and so on like that. So this wave will just cancel each other, so this wave will actually not exist, okay। इस टाइप का जो वेव है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वेव एग्जिस्ट कब करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल नहीं है। According to the de Broglie's hypothesis, we have to imagine it like a wave now. So if suppose this is the center or nucleus and this is suppose the orbit, then we can just draw the wave like this, having crust troughs alternate like this. So ये इस तरह से wave हम बनाएंगे वहां पे, sorry, तो ये देखो wavelength is going to be fixed, but here
if we just have this crust incident and this trough here, अगर ऐसा अगर हो गया तो ये वेव बचेगा ही नहीं. This type of wave will not exist, but the wave will exist only when it happens like this. ये देखो, अगर ऐसा होता है, ये देखो, इस टाइप का जो वेव है वही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो ये पूरे सर्कमफ्रेंस के अंदर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं मान लो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो गया, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं लैम्बडा, करेक्ट है, यस. उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेव कंप्लीट हो गया, देखो क्रस्ट ट्रफ, मतलब दूसरा वेव कंप्लीट हो गया, उसको फिर से हम बोलेंगे लैम्बडा, ठीक है. फिर तीसरा वेव जो है वो यहाँ से फिर यहाँ तक बोल सकते हैं, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, तो इधर तक जो है वो तीसरा वेव कंप्लीट हो गया. फिर ऐसे ही करते जाएंगे आगे, तो यहाँ तक चौथा वेव, फिर यहाँ तक पांचवा वेव, फिर यहाँ पे छठा वेव, और फिर सातवां वेव. ये देखो 7 वेव्स यहाँ पे बैठ रहे हैं पूरे सर्कमफ्रेंस के अंदर, 7 वेव्स बैठ रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे चलो ठीक है 7 वेव्स बैठ रहे हैं, अगर हमने सर्कमफ्रेंस थोड़ा कम किया तो कितने वेव्स बैठेंगे. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा होगा कि 6 वेव्स बैठेंगे, है कि नहीं, 6 वेव्स बैठेंगे. जब 6 वेव्स बैठेंगे पूरे, तब भी ये सर्कमफ्रेंस एग्जिस्ट करेगा और वेव वहां पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम होगा और वो उसी रेडियस के अंदर हो सकता है. रेडियस अगर थोड़ा भी हमने बढ़ा दिया तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. इवन जैसे हमने ऑलरेडी देखा है स्टेशनरी वेव्स चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जब भी किसी स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स फॉर्म होते हैं, तो वेव्स फॉर्म होने के टाइम वो लूप्स के अंदर वो डिवाइड हो जाता है, पूरा स्ट्रिंग जो है वो लूप्स में डिवाइड होता है. एंड इट इज द बेसिक नेसेसरी कंडीशन दैट द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेवलेंथ ऑफ द वेव. तो मतलब जो वेव का जो मतलब अभी लूप की अगर बात करते हैं, तो पूरे स्ट्रिंग के अंदर एक तो एक लूप बैठ सकता है या तो 2 लूप बैठ सकते हैं, है कि नहीं. अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आधा लूप बैठ जाए, ठीक है, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि डेड लूप या 1.5 या 1.7 लूप बैठ जाए, बिल्कुल नहीं. द लूप्स आर गोइंग टू बी इन इंटीग्रल मल्टीपल्स और दे आर गोइंग टू बी इंटीजर्स, राइट. नंबर ऑफ लूप्स कैन बी इंटीजर्स only, it cannot be the fraction. That's why we have to understand here, we can consider this orbit just like a stretched string which is circular in this way. And when this stretched string is vibrating here, then for stationary waves to form on this stretched string here, we can apply the condition that the whole length of the string must be an integral multiple of wavelength. तो यहाँ पे या तो 7 वेव्स बैठ सकते हैं या तो 6 वेव्स बैठ सकते हैं, 6.5 कभी नहीं बैठ सकते हैं. या तो अगर हम और कम करेंगे रेडियस को तो हो सकता है 5 वेव्स बैठ जाए. तो इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, देखो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से चेक करो कितने वेव्स बैठ गए. यहां से स्टार्ट किया, इधर से यहां से लेके यहां तक एक वेव हो गया, इधर से इधर तक दूसरा वेव, इधर से फिर इधर तक तीसरा वेव, ये हो गया चौथा वेव, और फिर पांचवा वेव. हो गया कि नहीं, 5 वेव्स बैठ रहे हैं यहाँ पे, देखो ठीक से 1 वेव 2 3 4 and 5, करेक्ट है. So this happens in this case when 5 waves are accommodated in this circumference, then we can say that this is the 5th orbit of revolving electron. Remember, if you want to draw the diagram for 4 waves only, then it will be like this. तो 4 waves बिठाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमको. सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया, फिर यहाँ से ये देखो 4 वेव्स बैठ गए. इधर से अगर स्टार्ट करते हैं तो इधर से इधर तक एक वेव, फिर इधर से दूसरा, इधर तक तीसरा, और ये चौथा. हो गया 1 2 3 4. तो इस तरह से 4 वेव्स अगर बैठते हैं तभी भी वो क्या कहलाएगा, 4th ऑर्बिट कहलाएगा, 4th ऑर्बिट. इवन वी कैन आल्सो ड्रॉ द डायग्राम फॉर 3 वेव्स. When the circumference will accommodate 3 waves, obviously that circumference will be smaller in size, like that. So we can say just draw the diagram like this. Yes, 3 waves. देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्रस्ट ट्रफ, एक वेव खत्म, क्रस्ट ट्रफ, दूसरा वेव खत्म, ये तीसरा वेव, 1 2 3, हो गए 3 वेव्स इस तरह से. इवन एंड दिस विल बी कॉल्ड एक्चुअली द 3rd ऑर्बिट. ओके, 3rd ऑर्बिट.
the radius of this third orbit will be still lesser than the radius of fourth orbit, because fourth orbit contains the 4 waves like this, but the third orbit will contain only 3 waves. Okay, in the same way here we can say the second orbit will be such that it will contain only 2 waves. So देखो crust, suppose यहाँ से start करते हैं, तो यहाँ से crust ट्रफ खत्म, ये हो गया 2 वेव्स, ये एक वेव और ये दूसरा वेव, एक क्रस्ट एक ट्रफ बन गया एक वेव, फिर वापस दूसरा क्रस्ट दूसरा ट्रफ बन गया दूसरा वेव. सो दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ, खत्म. इवन एक जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो भी हम दिखा सकते हैं आराम से. इट विल कंटेन ओनली 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, दैट्स ऑल. ओके, उसको चलो डायग्राम ड्रॉ करने से तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्रस्ट है या ट्रफ है करके, बट जस्ट इमेजिन it will only have 1 crust and 1 trough, that's all, and this whole circumference will contain only 1 wavelength. In that case we can call it as a first orbit. Okay, so in general ये जो हमने सब किया उसका मेन समझने जैसी बात क्या है, इसमें कहने की बात क्या है, कौन बताएगा? How will you put this in words? If suppose this is the orbit, this is the nucleus, and suppose this is the electron, which can be considered as a wave. So this wave will exist only when the circumference of this orbit will be equal to integral some number, okay, number into the wavelength. चेक करो एक बार ठीक से. The circumference of this orbit here will actually be some number, any number it may be, multiplied by the wavelength of the wave. करेक्ट है क्या? देखो ठीक से, ये वेवलेंथ अगर हमने इसको यहाँ पे लैम्बडा मान लिया, तो इस लैम्बडा का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, कितने भी टाइम्स हो सकता है सर्कमफरेंस, राइट? सो दिस सर्कमफरेंस हियर इज डिनोटेड बाय 2 पाई r, करेक्ट है? And the number can be denoted by n, and the wavelength can be written as lambda, correct hai? This is the basic condition that the circumference of this orbit must contain some integral multiple of wavelength. ये condition है, तो ये condition अगर हम satisfy कराएंगे, so but we already have that by de Broglie's hypothesis, this lambda can be written to be actually equal to h by p, where p can be written to be mv, that is the momentum. So we can say that is lambda is actually going to be lambda upon mv, where p matlab momentum, which is mv. So if h upon mv. So if you put this value of lambda here, तो अगर यहाँ इस इक्वेशन के अंदर अगर हमने ये वैल्यू लैम्बडा का डाल दिया तो देखो हमको क्या मिलेगा. So next step में we can have this 2 pi r is going to be equal to n times of lambda, where lambda is going to be h by mv. And if we just transfer this mv in this side and 2 pi in this side in the denominator here, then we can get this mv into r, which is going to be equal to n times of h upon ye 2 pi niche, so that we can get this mvr is equal to nh by 2 pi. That is we want to prove. Okay, that is what Bohr have said in the second postulate. So second postulate में जो बोर ने बताया था वो बाद में चल के जब डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस प्रूव किया गया या प्रपोज किया गया, तभी उसके बाद ही हमको ये समझ में आया कि व्हाई इट हैपेंस दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम बिकम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. ये कहना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi इसके बराबर है कि सर्कमफरेंस कंटेन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स. ओके, ये सर्कमफरेंस के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ होते हैं. इसी रीजन से यहाँ पे mvr जो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है, वो h by 2 pi का मल्टीपल बन जाता है. ठीक है, तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से. दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पोस्टुलेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पोस्टुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. Okay, so this is all about the hydrogen spectrum or hydrogen atom. There are some limitations of hydrogen spectrum. Okay, मतलब Bohr's atomic model. Bohr's atomic model के limitations क्या क्या है?
मैंने लास्ट टाइम भी जब स्टार्ट किया बोर्स एटॉमिक मॉडल तभी बताया था कि सबसे पहला लिमिटेशन उसका ये है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द एलिमेंट्स विच आर अदर देन हाइड्रोजन. एट द मोस्ट वी कैन अप्लाई इट फॉर हेलियम एंड लिथियम, बट फॉर आयन्स ओनली. अगर हेलियम प्लस प्लस आयन जो होता है, प्लस आयन, और लिथियम प्लस प्लस आयन जो होता है, उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं. हाइड्रोजन के लिए तो कर ही सकते हैं. तो इन तीनों के लिए ये बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई किया जा सकता है. हाइड्रोजन, हेलियम आयन एंड लिथियम डबल आयन, बस. बाकी जो हायर एलिमेंट्स है उनके लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड नहीं है. रिमेंबर, दिस इज द मेजर ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. The second limitation, just I have told last time, that the magnetic फील्ड के अंदर किसी भी सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं, इवन हाइड्रोजन को भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि जो लाइंस जो है वो थोड़ा स्प्लिट होते हैं. उसको बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रा. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल. एंड ऑल्सो द वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना, जो कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, जो आगे चल के ऑर्बिटल्स और जो ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस करके हमको जो एक्सप्लेनेशन में मिलता है, जैसा कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या शेप्स, वो सब जो है वो इसमें इस थ्योरी के बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है. ठीक है. सो इवन जो वैल्यूज हमको मिलते हैं, वेवलेंथ के जो वैल्यूज हमको मिलते हैं और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में हमको जो वैल्यूज मिलते हैं, वो भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है. ठीक है ना. वो काफी करेक्ट है, नो डाउट, बट फिर भी एग्जैक्टली मैच नहीं होते हैं. देयर आर सम डिफरेंसेस इन द वैल्यूज ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली एंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली. ठीक है. तो ये एक जो बात है. और दूसरी बात की है कि सेकंड पोस्टुलेट जो है, सेकंड पोस्टुलेट उस समय के हिसाब से जब उसने प्रपोज किया था, तो इट वाज नॉट अप टू डेट, मतलब अप टू सेटिस्फैक्टरीली एक्चुअली. तो वो उस समय सेटिस्फैक्टरीली नहीं था. जब भले बाद में चल के जब डी ब्रूगेस हाइपोथेसिस जब प्रूव किया गया, तो उसके बाद उसका रीजन समझ में आ गया. बट अगर उस हिसाब से देखा जाए, मतलब उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ ड्रॉबैक और लिमिटेशन, नो डाउट. सो दिस इज अबाउट द डी ब्रूगेस हाइपोथेसिस एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल and hydrogen atom spectrum. Okay, so in the next lecture, we'll see the next topic in this chapter, that is about nucleus. Okay, the construction and structure of nucleus. Even we are also going to find out the density of nucleus. Okay, and nucleus का जो stability है, या nucleus का जो अंदर जो protons और neutrons होते हैं, उनके बारे में भी हमको डिटेल में डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में. चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर.